شاملی ضلع کے کیرانہ میں مسلم سماج کے لوگوں نے مہنت یتی نرسنگھانند کے خلاف زبردست پردرشن کیا۔ انہوں نے مہنت دوارا پیغمبر محمد صاحب پر اشوبھنیہ ٹپنی کے وروध میں نعرے بازی کی۔ کیرانہ کی پراچین جامع مسجد کے مکھیہ گیٹ پر تحریک ائمہ مساجد کے بینر تلے ایکتر ہوئے درجنوں لوگوں نے وروध درج کرایا ہے۔ اس دوران لوگ ہاتھوں میں تختیہ اور راشٹر دھوج ترنگے بھی لیے ہوئے تھے، جبکہ ایک پوسٹر بھی تھا جس پر یتی نرسنگھانند کی تصویریں بھی چھپوائی گئی تھی۔ پردرشن کرنے والے لوگوں میں کچھ یوک اتنے آکروشت دکھے کہ انہوں نے یتی نرسنگھانند کی تصویر پر چپلیں برسا دی۔ جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا طاہر کی اگوائی میں مہامہم راشٹرپتی کے نام گیاپن سونپا گیا۔ ایس ڈی ایم کو یہ گیاپن دیا گیا ہے اور یتی نرسنگھانند کے خلاف کٹھور کارروائی کی مانگ کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبرو کی تحفظ کے لیے ہے۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم ہر طرح کی چیزیں برداشت کر سکتے ہیں، پریشانیاں تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان کی جوخم کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے آبرو پر اگر کوئی بات آئی، یہ بات بڑا قابل برداشت ہے۔ ہم اس بات کا عہد پہلے بھی کر چکے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ دنیا میں جب تک سلامت رہیں گے، زندہ رہیں گے، نبی کی آبرو کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ تین محمد سے وہ خاتون ہے تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی بس۔ محترم بزرگ اور بھائیوں، آزادی سے پہلے اس ملک کے اوپر انگریزوں کا تسلط تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ملک کے تمام لوگوں نے، تمام کمیونٹی کے لوگوں نے، تمام مذاہب کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر قربانیاں دی، تب کہیں جا کر یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ اس ملک کی آزادی میں سبھی کا حق ہے، سبھی نے قربانیاں دی ہیں، اور اس ملک کا سنویدھان بنایا گیا تھا کہ سب کے مذاہب کا تحفظ ہو سکے اور کسی کے مذہب کو ٹھیس نہ پہنچے، سبھی کو برابری کا حقوق دیا گیا تھا۔ اور ہمارے ملک کے اندر جو پارٹیاں وجود میں آتی ہیں، جو حکومت کرتی ہیں، وہ بھی اس چیز کا حلف لیتی ہیں کہ ہم سب کے ساتھ میں برابری کا معاملہ کریں گے، کسی کی بھی مذہب کو، آزادی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، کسی بھی کمیونٹی کے لوگوں کو کسی کے مذہب کے اوپر آواز نہیں آئے گی، سب کے ساتھ میں برابری کا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے ہمارے ملک کی سالمیت کو توڑنے کے لیے، مسئلے اس ملک کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ملک کے اندر نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والا آدمی ہو، وہ اگر
दूसरे मजहब के लोगों को ठेस पहुंचाता है तो वो मुल्क एक बार फोन काटने के बाद बार बार ना करे अगर वो कवर कर रहा। और ऐसा आदमी कभी भी मुल्क से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता, वो मुल्क को तोड़ने वाला है। किसी भी मजहब के मानने वाला, कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो दूसरे मजहब से नफरत पैदा करने का तो इसके अंदर बात कही गई है। खुद मजहब इस्लाम के अंदर कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तसब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। ये अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि तुम दूसरे लोगों के माबूदों को बुरा भला मत कहो, गाली मत दो, इसलिए कि अगर तुम गाली दोगे तो वो तुम्हारे माबूदों को, तुम्हारे पेशवाओं को गाली देंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने माँ बाप को गाली मत दो। तो किसी ने मालूम कि अल्लाह के रसूल अपने माँ बाप को कौन गाली देता है, तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुम दूसरे के माँ बाप को गाली दोगे वो तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा, इसलिए अपने माँ बाप को गाली देने का जरिया तुम बने हो। तो हमारे मजहब के अंदर इस बात की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। कोई मुसलमान अगर किसी दूसरे मजहब के पेशवाओं को, दूसरे लोगों को, मजहब के मानने वालों को, उनके माबूदों को, उनके पेशवाओं को अगर गाली देता है, बुरा भला कहता है, वो सही माना में मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई दाढ़ी वाला हो, कोई मुसलमानों के कपड़े में हो और वो दूसरों के माबूदों को गाली देता हो, बुरा भला कहता हो, तो ऐसा मुसलमान सही मुसलमान नहीं हो सकता और ऐसा मुसलमान मुल्क के हक में सही नहीं हो सकता। इसी तरह हम इस बात को समझते हैं कि अगर हमारे मुल्क के अंदर ही अगर कोई दूसरे मज़हब का, किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, वो दूसरों के माबूदों को, पेशवाओं को बुरा भला कहता हो, तो ऐसा आदमी मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। अभी आप हज़रात ने देखा होगा कि कुछ दिनों से पहले भी जो कथा कथित जो अपने आप को मजहब का पेशवा कहता है, यदि नरसिंहानंद जिनका नाम है और मजहबी चोले के अंदर भी रहता है, उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी की है और ऐसे अल्फाज कहे हैं कि जो मुसलमान उसको सुनना पसंद नहीं कर सकता। मुसलमान ये चाहता है कि हम पहरे हो जाएं, लेकिन ऐसे अल्फाज हमारे कानों के अंदर ना है। और ये हर मुसलमान इस बात को जानता भी है, समझता भी है। और कोई मुसलमान कितना भी गुनहगार हो, वो नमाज ना पढ़ता हो, रोज़ा ना रखता हो, लेकिन ऐसा मुसलमान कभी सही माना मुसलमान नहीं हो सकता जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करे। हमारे घरों को आप तोड़ दीजिए, हमारे घरों को तोड़ दीजिए, हमारी जानों को आप कुर्बान कर दीजिए, लेकिन अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए, इसको कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सही माना मुसलमान वही मुसलमान है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न कर सकते। लेकिन आप हज़रात देख रहे हैं कि अभी आपकी शान में गुस्ताखी की गई और इससे पहले भी अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की गई थी। उनको फिर जेल के अंदर बंद कर दिया गया था हल्की फुल्की धाराएँ लगाकर। तो उसी का ये नतीजा था कि अगर उसी वक्त उनके ऊपर सख्ती कर दी जाती तो आज ये दिन देखने को नहीं आता। तो हम ये चाहते हैं अपने प्रशासन के लोगों से भी और अपने सीएम से भी और अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से कि वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कोई भी हो, किसी भी मजहब के मानने वालों को, उनके पेशवाओं को अगर बुरा भला कहा जाए तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई की जाए कि दूसरों की भी आंखें खुल जाएं और कोई दूसरा आदमी फिर ऐसी हरकत न कर सके। तो हम सब यही मुतालबा कर रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जो गुस्ताखी की गई है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त धाराओं के अंदर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो हमारी अदालतें हैं, जो बड़ी अदालतें हैं, उससे दरख्वास्त की जाती है
कि इसका संज्ञान लिया जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त सजाएं दी जाए और जो सख्त धाराएं हैं उनकी धाराएं लगाकर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, हम सब यहाँ जमा हुए हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, आपकी शख्सियत, आपके एहतराम और आपके तक़द्दुस की हिफाजत के लिए। हम सब जानते हैं कि हमारा ईमान है कि हमारे लिए सबसे अजीम शख्सियत, सबसे मुक़द्दस ज़ात, अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी एक मुसलमान का अपने माँ बाप से, किसी एक मुसलमान का अपनी औलाद से, किसी एक मुसलमान का अपने घर वालों से, किसी एक मुसलमान का अपने किसी भी रिश्तेदार और ताल्लुक़ वाले से वो रिश्ता और ताल्लुक़ नहीं हो सकता जो एक कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाले का और एक बुरे से बुरे मुसलमान का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा ईमान अल्लाह के रसूल के सदक़े में बाकी है, हमारे दिल में जज्बात अल्लाह के रसूल के सदक़े में बाकी है। हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, हम जी रहे हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। हमारा ईमान बाकी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। हर ईमान वाला जानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसे और हमारा अल्लाह के रसूल से क्या रिश्ता है। हम अल्लाह के रसूल से अटूट मोहब्बत करते हैं, हमारी जान अल्लाह के रसूल के लिए हर एतबार से कुर्बान है। हम हर चीज़ को अल्लाह के रसूल के रास्ते में कुर्बान कर सकते हैं, इसलिए कि हमारे महबूब पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ लोगों के सामने दी हैं। उन्होंने अपनी उम्मत के लिए दुश्मनों से मुकाबला किया है, वो लोगों से सिर्फ इसलिए लड़े हैं ताकि मेरी उम्मत को कोई नुकसान न पहुंचा सके और मेरी उम्मत की हिफाजत रहे। इसीलिए उन्होंने हमारे ऊपर इतने एहसान किए हैं कि कोई माँ बाप किसी औलाद के लिए इतने एहसान नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल हमारे लिए जितने मुशफ़िक़ हैं, जितने करीम हैं, कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए इतना मुशफ़िक़ और करीम नहीं हो सकता। इसलिए हमारे दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात मोहब्बत हमेशा ताज़ा रहते हैं, कभी उनमें जंग नहीं लगता, कभी वो ठंडे नहीं पड़ते हैं। हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है, हमारा जज्बा इस बात पर सही है कि हम दुनिया में हर चीज़ गवारा कर सकते हैं, लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कोई आदमी ज़बान से या कलम से किसी तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा, मुसलमान वो चाहे कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला हो, कतई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बताइए बर्दाश्त करेंगे नहीं करेंगे? हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत हर चीज़ से बढ़कर है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए इंशाअल्लाह पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। इसलिए हम अपने प्रशासन के लोगों से, अपने मुल्क के दूसरे भाइयों से और सभी मजहबी पेशवाओं से और धार्मिक बड़े लोगों से ये अपील करते हैं, इस तरह मुसलमान इस मुल्क में सुकून और शांति के साथ रह रहा है और रहना चाहता है, और वो मुल्क में कभी अपनी ज़बान से दूसरे पेशवाओं के लिए और मजहबी लोगों के लिए अपनी ज़बान से कोई गुस्ताखी के जुमले और गलत बातें नहीं निकालता। हमारा मुतालबा प्रशासन से भी, हमारा मुतालबा हुकूमत से भी, हमारा मुतालबा दीगर लोगों से भी यही है कि वो मुसलमान को भी और अहले इस्लाम को भी इस मुल्क में सुकून के साथ और अमन के साथ रहने की कोशिश की जाए, उनके किसी किस्म के जज्बात को बरंगेज़ न किया जाए। इसलिए कि मुसलमान इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी और कम्युनिटी है, हम कम लोगों में नहीं है। मुसलमानों की तादाद इस मुल्क में इतनी बड़ी है कि वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान शांतिपूर्ण है, मुसलमान इत्तिहाद चाहता है, मुसलमान मुल्क की सलामती चाहता है,
مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کا سمویدھان بھی اور قانون اور دستور بھی بہت بڑی چیز ہے جس کی حفاظت ہر مسلمان کرتا ہے اور کرتا رہے گا. لیکن جب بات آئے گی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بات آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی، تو پھر ہم ہر چیز کو گوارا کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتے. اس لیے ہم موجودہ حکومت سے، ہمارے وزیر اعظم سے، ہمارے وزیر اعلیٰ سے اور ضلع شاملی کے پرشاسن سے، ادھیکاریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ نرسمہانند جو گستاخ رسول ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، پہلے بھی کی ہے اور آج بھی کی ہے، اگرچہ اسے ویسے ہی آسان سی دھاراؤں میں گرفتار کر کے اسے پناہ دی گئی ہے جیل کی، تو بہتر یہ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس پر سخت دھارائیں لگائی جائیں، اس کو سخت جیل میں ڈالا جائے اور اس کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی دشمن رسول کو اپنی زبان سے اللہ کے رسول کے خلاف کوئی جملہ کہنے کی جرأت نہ ہو. اس لیے صرف اس میں ابھی محمد طاہر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ صرف مسلمان اپنے مذہب کی چیز کو گوارا نہیں کرتا، یہ بھی ضروری ہے، لیکن مسلمان خود اس کے پیشوا اور ذمہ دار مسلمانوں کو یہ اجازت بھی نہیں دیتے، قرآن بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کی بھی دھارمک لوگوں کو ٹھیس پہنچانے کا کام کرے. یہ ہمارا ایمان ہے ہی نہیں. ہمارا ایمان یہ ہے نہ خود تکلیف اٹھاؤ نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ خود ظلم سہو نہ کسی پر ظلم کرو، نہ خود مظلوم بنو نہ کسی کو مظلوم بنواؤ. یہ ہمارا ایمان ہے. اس لیے ہم پورے ملک میں جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ اور مذہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، سب کی دھارمک چیزوں کو اپمان نہیں کرنا چاہتے، ان کو امن اور سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک میں امن کی فضا باقی رکھا جائے، ملک میں اتحاد باقی رکھا جائے، اور جس طرح مسلمان اور دوسرے مذہب والے لوگ سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، اسی طرح رہنے کے موقع دیے جائیں. اور جو لوگ اس فضا کو، اس ماحول کو زہر آلود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس فضا کو ناخوشگوار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت سے مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی پکڑ میں لی جائے تاکہ ملک میں فساد اور فرقہ وارانہ چیزیں نہ پھیلے اور ہر کمیونٹی کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے ماحول اور سکون میں آسانی کے ساتھ جیتے رہیں اور زندگی گزارتے رہیں. یہی ہمارا مطالبہ ہے. نعرہ تکبیر، تکبیر، گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا، رسول बराबर इस सुअर का मुंह ऊपर होकर अब देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, और आपको पता भी है कि दासना के अंदर जो एक हमारे पुजारी हैं, यती नरसिंहानंद जिनको कहा जाता है, उन्होंने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है और ऐसे अल्फाज के हैं जो जिसको मुसलमान सुनना पसंद नहीं कर सकता. तो उसी के ख़िलाफ़ आज ज्ञापन दिया गया कि उनके ऊपर सख्त धाराएँ लगाई जाएँ. पहले भी उन्होंने गुस्ताखी की थी तो हल्की धाराओं में उनको जेल भेज दिया गया था, और उसके अंदर ये बात थी कि जो ज़मानत दी गई थी वो इसी बात पर दी गई थी कि वो आइंदा कोई इस तरह की बातें नहीं कहेंगे. तो जो पहली उनकी जो ज़मानत थी उसको तोड़कर और उसके अंदर और सख्त धाराएँ बढ़ाकर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरे लोगों के कोई भी संदेश जाए कि वो ऐसी हिम्मत न करे कि वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, पेशवा हों
और किसी भी कम्युनिटी के आदमी को इसकी इजाज़त नहीं है कि वो दूसरे मज़हब के पेशवाओं के ख़िलाफ़ भद्दी टिप्पणी करें, उनको बुरा भला कहें। उसी के ख़िलाफ़ आज हमने जो है ये ज्ञापन दिया था आज यहाँ पर एसडीएम साहब